Good morning, dear students. This is our first class of your computer subject. I will teach you this subject from book IT Apps. This book is recommended by school. So let's start our first chapter with the introduction of computers. The name of chapter is Input and Output Devices. Okay? Firstly, we will know about what is computer. Children, computer is an electronic device that accepts data and instructions given by user. User, that means we are user, and computer, it is an electronic device. वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो डेटा एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है जो हम लोग उसको देते हैं, एंड आफ्टर टू दैट it process them accordingly and gives meaningful results. Okay, so a computer system performs three basic functions. First, it is input. Second, processing. Input, that means we feed data and instruction by input device. After to that it processes them, that processing function will be happen, and then output, the result, the meaningful result will shown. Okay, so children, computer works on electricity and it can compare to a magic box also. Magic box, it looks like a box की तरह दिखता है, इसलिए इसको मैजिक बॉक्स से भी कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ इट कैन डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स, different type of jobs this box can do. Okay, it can not confined in office only. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी ऑफिस में ही इसको ऑफिस वर्क के लिए ही यूज़ किया जाता है. ओके, इट कैन बी सीन everywhere like shop, schools, hospitals, bank, airport, railway. You can see anywhere. जहाँ भी जाओगे आप कंप्यूटर ज़रूर देखते होगे. Why? Because of it works very fast and gives 100% accurate result. Okay, ये बहुत जल्दी वर्क करता है. बहुत जैसे ही हम इसके अंदर में कोई डेटा फीड करते हैं या इंस्ट्रक्शन डालते हैं, वो तुरंत उसका मीनिंगफुल रिजल्ट हम लोगों को देता है. ओके, सो चिल्ड्रन, कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम works with hardware and software. Hardware, it is a physical device. Hardware, it is a physical device that we can touch, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. This is computer hardware. ठीक है, हार्ड, इससे भी आप लर्न करके रख सकते हो. हार्ड जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. सॉफ्टवेयर, Software is a set of instruction that helps the hardware to work in desired manner. Software जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, उसके थ्रू कंप्यूटर अपने आप से सिर्फ एक सिंगल बॉक्स रखोगे आप, उसके बाद उसको कोई इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो क्या वर्क करेगा वो? नो, इट विल नॉट वर्क. तो सॉफ्टवेयर इनसाइड दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो हमें डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल रिजल्ट देता है. You can understand by one example, like to listen music we require a music system. हम लोग को जब म्यूज़िक सुनना होता है तो हम लोग को किसकी ज़रूरत होती है? म्यूज़िक सिस्टम की. एंड द म्यूज़िक सिस्टम, CD एंड DVD, these are हार्डवेयर डिवाइस. ये हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, हार्डवेयर है ना. अभी अभी मैंने बताया कि हार्डवेयर दैट इज़
physical part that we can touch and see. तो म्यूज़िक सिस्टम और CD DVD इसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. ओके. कैन यू टच द सॉन्ग्स? जो भी गाना तुम सुन रहे हो उसको यूज़ करके क्या तुम उसको टच कर सकते हो? नो, बिकॉज दैट इज़ सॉफ्टवेयर. वी नीड बोथ टू इन्जॉय द म्यूज़िक. वो जो म्यूज़िक उसमें से बज रहा है, जो सॉन्ग आ रहा है, वो सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें डाला गया है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं. वो सिर्फ बज रहा है, वो हमें रिज़ल्ट दे रहा है. उसको म्यूज़िक सिस्टम को ऑन करने के बाद, DVD उसमें लगाने के बाद, तो दैट इज़ सॉफ्टवेयर. तो यू कैन अंडरस्टैंड what is hardware and software. Okay, so children, the main component which carry out the basic operation of the computer are the keyboard, mouse, CPU and monitor. These are the main components. ये आप ज़रूर देखते हो कि जब भी आप अपने लैब में जाते हो तो ये बेसिक जो कंपोनेंट है ये तो ज़रूर होता है. You can see in your book also. Keyboard. Okay, ये ज़रूर देखते होगे. Then after this, monitor and the CPU. This. So these are the basic. Beside this components, some additional part can also be attached to computer. These additional part are known as peripheral of a computer. Printer, scanner, modem. ये सब पेरिफेरल है. मीन्स ये नहीं भी रहेगा तो भी कंप्यूटर तो वर्क करेगा ही. प्रिंटर की ज़रूरत कब होगी? जब हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना होता है, स्कैनर रिलेटेड इमेज निकालने होते हैं. ओके, तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइस हैं. बट दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स. ये कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो सिस्टम आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम वो वर्क नहीं कर पाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस. फर्स्ट, व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट, कंप्यूटर सिस्टम वर्क विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू. हार्डवेयर दैट वी कैन टच एंड सॉफ्टवेयर दैट helps the hardware to work. Okay, now the computer divides in two parts, input devices or output device. What is input device? The device through which we enter data and instruction are called input device. ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम उसमें डेटा डालते हैं. ठीक है, उसको इनपुट दैट मीन्स उसके अंदर डालना, किसी चीज़ में डालना. तो एज अ सेम मैनर इनपुट डिवाइस दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज़ कीबोर्ड. कीबोर्ड से टाइप करते हैं और डेटाज डालते हैं या इंस्ट्रक्शन डालते हैं. सो कीबोर्ड इज़ कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. The other input device are mouse, trackball, light pen, which do not require typing to input data. ये सब टाइपिंग करने के लिए यूज़ नहीं होता है. ओके, दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंट करने के लिए जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं या जो भी सॉफ्टवेयर उसमें डाले गए हैं उसको पॉइंट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. वी कैन सेलेक्ट एनी आइटम टू स्क्रीन बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग ऑन इट. कॉमन इनपुट डिवाइसेस. अभी मैंने बताया कॉमन इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है कीबोर्ड. विदाउट कीबोर्ड वी कैन नॉट इनपुट एनीथिंग. अ कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर. टाइपिंग. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. इसमें कितने कीज़ होते हैं? 104 कीज़ विच कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स. जो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. दैट इज टाइपिंग कीज. यू कैन सी हियर इट इज टाइपिंग कीज जिससे हम टाइप करते हैं. ओके,
अल्फ़ाबेट कीज़ भी इसको कहते हैं, एंड न्यूमेरिक कीज़। ये अल्फ़ाबेट पूरे दिख रहे हैं आपको, ओके। एंड हियर यू कैन सी न्यूमेरिक कीज़, ये न्यूमेरिक कीज़ है यहाँ पर। दीज आर न्यूमेरिक कीज़, इसमें नंबर्स हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिक कीज़। फंक्शन कीज़, फंक्शन ये F1 F2 दीज आर फंक्शन कीज़, ओके। ये फंक्शन कीज़। नेविगेशन, नेविगेशन की, दिस इज़ कॉल्ड नेविगेशन की। एरो की, होम, एंड पेज अप, ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इट इज़ नेविगेशन कीज़। इसमें एरो कीज़ होते हैं, ये एरो कीज़। होम, यहाँ पे लिखा हुआ है होम। एंड पेज, ये एंड, ओके। पेज अप, पेज डाउन, these are navigation keys. or some of it control keys. control keys here CTRL, यहाँ जैसा दिख रहा है आपको, this CTRL alt, ये सारे कंट्रोल कीज़ हैं। विंडो लोगो की यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। सो दीज आर कंट्रोल कीज़, ओके। Second type of most commonly used input device is mouse. A mouse is a handheld pointing device with 2 or 3 buttons on its top. It is used to control the movement of pointer. It is also used to point and select the object and open files, folders. A mouse is used to draw pictures. So children, it is a pointing device. Mouse, it cannot type alphabet or numbers. It can only select the things, जो भी उस पर लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही फास्ट सेलेक्ट करता है। और दिस क्लिक बाय द लेफ्ट क्लिक, इट कैन वर्क्स वेरी फास्ट ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ input device is microphone. A microphone is an input device which is used to record voice. ये वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और म्यूज़िक, साउंड, ये सारे जो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वी कैन रिकॉर्ड बाय द माइक्रोफोन। साउंड कार्ड इनेबल द computer to record sound input from a microphone. Here in this picture you can see it is a microphone and it is connected to computer. Apart from recording sound, the computer microphone is used in many applications such as telephones, tape recorders and cargo systems, hearing aids. इन सब चीज़ों में भी माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मोर इनपुट डिवाइसेस। टच पैड. Touch pad is used in instead of mouse on the laptop computer. Touch pad, this it is a touch pad. और ये लैपटॉप जो होते हैं उसमें इसको आप देख सकते हो। It is a touch sensitive pad. टच सेंसिटिव, ठीक है, सिर्फ टच करने से ही वर्क करता है। यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। इस तरह से इस पे मूव ऐसे करोगे तो वो कंट्रोल करता है, ओके। जिस तरह से हम माउस को मूव कराते हैं उसी तरह से इस टच पैड के मूवमेंट के थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। टच स्क्रीन. अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज़ सेंसिटिव टू द टच. We can select the objects directly by touching with fingers without using any pointing device. Example, ATM machine, cell phone. ये सारे भी तो एक तरह के कंप्यूटर्स ही हैं। जो आप ATM मशीन देखते हो जिसमें सामने स्क्रीन पर ही टच करने से वो वर्क करता है, प्रोसेसिंग करता है। सेल फ़ोन जो हमारे हाथ में अभी है जिससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ टच स्क्रीन पैड। सारी चीज़ें टच करने से ही इस पर वो एक्सेस होता है, प्रोसेसिंग होकर के वो वर्क करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ लाइट पेन. A light pen is a pen like pointing device. It is used to select object on the display screen.
It is quite similar to mouse, except that it allows you to point to the object displayed on the screen or draw directly on it. Light pen is only used to with CRT monitors. It is mainly used by engineers, fashion designers or architects. These type of devices we cannot not see in commonly used, ठीक है ना, because of ये mostly architects engineers के द्वारा use किया जाता है. Okay, so children, rest of the input device I will teach you in next video. Revise this chapter properly.